Ladies and gentlemen, esteemed guests and advocates for youth mental health, I'm honored, very, very honored to welcome you all to today's discussion. Those of you who do not know me, my name is Rania Rajput, and I'm as the Chief Secretary for Youth Mental Health and Social Health at Pakistan Health Parliament. It is my absolute privilege to guide our conversation towards a topic of paramount importance, a topic that has not been much talked about, but it actually is a very serious and more significant one, that be identity crisis. Well, in the tapestry of human experience, identity crisis emerges as a profound yet very often overlooked challenge, symbolizing as per the definition of Eric Erikson, as we say, it symbolizes the intricate struggles individuals face in navigating their sense of self, including values, beliefs, goals, overall identity amidst the complexities of our modern world, right? Many people experience that, but they aren't actually aware of what it is. So it could be conceptualized as a state where the perception of oneself and the reality of one's circumstances, becomes kind of blurred and conflicted. So don't not many people kind of understand kya ho raha hai unke sath. Why are they not forming a complete sense of self? So today, as we come together to shed light on this journey of self-discovery, let us approach with empathy, understanding, and shared commitment to fostering a supportive environment where every individual can thrive. So before that, and before anything, let's welcome our amazing, amazing guest, who wears more than 18 years of multidimensional experience. So working as an educationist, psychotherapist, holistic counselor, well-being trainer, and psychoeducation consultant. She's an associate member of MICBT Institute Australia. She's a registered member of Anafrod Learning Network and PPA. She's a certified certified in clinical hypnosis, neurolinguistic programming, trauma focused therapy, and advanced level MICBT. She was a VC, Pakistan Psychological Forum, GRT, and currently director of online mental health platform that is Psych Excel Institute. And there's so much more to her. So yeah, let's present a very warm welcome to Ms. Eram Puram. Over to you, ma'am. Okay, thank you so much, Rania. Good to see you. So you have selected one of the wonderful topics which is related to the human psychology, and the whole development span of the human psychology identity crisis is definitely one of the major concerns for every human being when it comes to their self-worth, their self-concept, and their self-evolution as well. And usually we take it like a negative sign, but in a sense, this is a kind of positive sign that identity crisis is actually the result of intensive exploration and analysis of your self-worth. And when you question your values and your existence and the value of your existence in a specific environment. So there are certain factors which contribute to this. And the very first encounter of identity crisis is usually during teenage, but we may face it during any phase of life. Whenever we are facing any kind of transformation in our life, shifting प्रोफेशनल लाइफ में हम किसी एक लाइफ के फेज से दूसरे लाइफ के फेज में शिफ्ट कर रहे हैं, या हम प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जब भी हम किसी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजरते हैं, तो वी मे फेस दिस आइडेंटिटी क्राइसिस. एंड पहला इसका जो एनकाउंटर है वो एक बड़े रियलिस्टिक तरीके से टीनेज के टाइम पीरियड में आता है. दूसरा इसका आता है मिडिल एज में. और a lot of people have been sharing this thing कि जब मिडिल एज का टाइम आता है तो दे फील लाइक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की फॉर्म में ये सामने आता है हमारे पास. अगर ये रिजॉल्व नहीं होता हमारा टीन एज के टाइम पीरियड पर या उसके बाद बाकी लाइफ स्टेजेस में, तो फिर ये क्राइसिस की फॉर्म में जो है वो हमारे सामने आता है. तो आइडेंटिटी क्राइसिस को डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा सा आइडेंटिटी फॉर्मेशन को देखेंगे. लाइक आइडेंटिटी इज काइंड ऑफ सब्जेक्टिव एंड वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट. ये आपकी पास्ट मेमोरीज से, लाइफ एक्सपीरियंसेस से और आपकी लाइफ की विजन से जो है इट इज फॉर्म्ड थ्रू डिफरेंट डायमेंशंस. एंड द वेरी फर्स्ट लेवल इज योर फैमिली लेवल. फैमिली लेवल पर आपके जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, आपको कितना इनिशिएटिव लेने दिया गया और आपकी इंडिविजुअल एबिलिटीज को कितना नर्चर किया गया या क्वेश्चन किया गया. ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल्स के साथ साथ बाद में हम इसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन उसके साथ हमारे स्कूल कल्चर, यूनिवर्सिटीज के कल्चर का इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है. बिकॉज द वे स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट एंड दे आर बीइंग प्रोवाइडेड अ लर्निंग कल्चर दैट आल्सो क्रिएट a huge issue for their identity formation as well. ठीक है. Thirdly, आपकी social cultural values आ जाती हैं. ठीक है. Social cultural values में जब आप
आपके पास सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं, इफ यू डोंट हैव ट्रस्ट इन द वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दैट सोसाइटी, इवन एट रिलीजियस लेवल, इफ यू डोंट हैव ट्रस्ट इन दोज प्रैक्टिसेस, तो फिर आप आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो आपका ट्रिगर कर जाता है. And at cognitive level, we may say that it is the distance between your practices and your beliefs. अगर हम पर्सनल लेवल पर देखें तो आइडेंटिटी क्राइसिस की सबसे पहली रीजन जो आती है हमारे पास, वो ये बनती है कि हमारा बिलीफ कुछ और है, हमारा बिलीफ सिस्टम कुछ और कह रहा है और हम प्रैक्टिस कुछ और कर रहे हैं. मे बी ड्यू टू पर्सनल रीजंस, मे बी वी प्रेफर अवर कंफर्ट जोन, मे बी अंडर सोशल प्रेशर, पीयर ग्रुप, और डिफरेंट रीजन इसकी आती हैं. दूसरा इसका जो मेजर फैक्टर हमारे सामने आता है वो है आपके रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ का गैप. व्हेन यू सी कि आपका जो आइडियल सेल्फ है, आपने उसके लिए कोई भी रियलिस्टिक जो है वो टारगेट्स नहीं रखे, आपकी गोल सेटिंग या तो है ही नहीं, या फिर लाइफ में ऐसी है आपकी गोल सेटिंग के आपके वो गोल्स रियलिस्टिक नहीं है, आपका एनवायरनमेंट और आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं वो उस गोल को जो है वो एड्रेस नहीं करती, तो फिर भी आप आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो उसमें आ जाते हैं. That was actually very thorough. Thank you so much, ma'am. मैंने इंट्रोड्यूस तो आपको किया था, मैंने कहा आप थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करेंगी and maybe you know but you do not need an introduction, so yeah. A lot of introduction was already there. इससे ज्यादा क्या तारीफें करनी है अपनी. Yeah, but you talked very comprehensively, and I really like the idea कि आपने identity formation से start किया, because getting into to knowing अगर crisis की state क्या है, but before that we have to have an understanding of कि form कैसे होती है, it's subjective and it's how it's kind of like what is the process behind it, and it's very unique for every single individual. Before that आपने थोड़ा सा बता दिया है कि identity formation किस तरह है, identity crisis. अभी तो एरिक्सन की थ्योरीज में आती है, तो वो एक प्रॉपर पूरा फेज जो है वो उसको डिस्कस करती है. वो दैट इज, आई बिलीव दैट शुड बी अ मेजर पार्ट ऑफ दैट. तो नेक्स्ट मे बी अगर हम उस पे बात कर लें. Sure. उसके ऊपर बात कर लेते हैं. Maybe common, because I want to keep it as conversation as possible. Whatever idea pops up, whatever thought comes up regarding identity formation or crisis, that is very most welcome. So I would really appreciate अगर आप एरिक एरिक्सन की theory की बात करें, ताकि audience is kind of aware and has this foundation कि क्या हम बात कर रहे हैं अभी. So the major contribution in the field of psychology was by Erik Erikson, जिसने सबसे पहले identity crisis को define किया और इसकी importance को highlight किया. And the psychosocial theory given by Erikson is one of the most wonderful theories in the field of psychology, जो human developmental stages को बहुत explicitly उसको जो है describe करती है और उसको explain करती है. एंड बहुत रियलिटी बेस्ड उसके डिफरेंट फेजेस हैं. उससे पहले अगर हम देखें तो इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी हम अनकॉन्शियस की बात करते रहे, और जो लोगों के लिए समझना भी थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल था. ठीक है, इंस्टिंक्ट्स की बात होती रही, डार्क साइड ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटीज की बात होती रही. फिर जब सेकेंड वेव और थर्ड वेव साइकोलॉजी में स्टार्ट हुई, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब सोशो इमोशनल डेवलपमेंट पर, ह्यूमन पोटेंशियल की ग्रोथ पर जब एक एम्फेसाइज किया गया, और उसके बाद पॉजिटिव जो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी जिसमें फ्लरिशिंग और फ्लो के कॉन्सेप्ट ऐड हों, उसकी जब बात की गई, तो साइको सोशल डेवलपमेंट जो थी दैट वाज द वेरी एक बेस लाइन उसने प्रोवाइड की उसके लिए. सो अकॉर्डिंग टू दैट, और हम जैसे कि रूटीन लाइफ में भी हम देखते हैं इस थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारी रूटीन लाइफ के लिए एक कॉमन लेवल पर भी लोगों के लिए बहुत क्लियरली वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबसे पहला जो फेज होता है हमारी डेवलपमेंट में वो ट्रस्ट और डेवलप करने का होता है. व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है, तो उसको अगर इफेक्टिवली उसकी सारी नीड्स को जो है वो एड्रेस किया जा रहा है, अगर उसको लुक आफ्टर किया जा रहा है प्रॉपरली, ऐसा है नहीं कि इफ दैट चाइल्ड नीड्स फूड तो जब वो रोएगा तभी मिलेगा. ठीक है, और अगर उसको रोए बगैर टाइम पर अपने एनवायरनमेंट से एक चीज, एक सेफ्टी, फूड और इसकी सारी नीड्स उसकी फुलफिल हो रही हैं, तो दैट चाइल्ड विल डेवलप द सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड होप इन द वर्ल्ड, in the environment around that child, and then that child would like to take initiatives. अगर ये ट्रस्ट की स्टेज ही हमारी खराब हो जाती है और इस लेवल पर बच्चे को इग्नोर किया जाता है और उसकी जो है वो नीड्स को फुलफिल नहीं किया जाता, यहाँ पर थोड़े से क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं. वंस आई वाज अटेंडिंग अ वर्कशॉप विद
certain experts, worthy experts from different cultural backgrounds, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस होती है कि हमारे वहाँ पर प्रैक्टिस है कि बच्चों के 8 o'clock के बाद जो है वो उसके रूम में आप भेजते हैं एंड द चाइल्ड शुड बी एबल टू स्लीप ऑन हिज ओन, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमारे यहाँ पर लेकिन ये है कि इसको काइंड ऑफ क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि यहाँ बच्चों को बहुत पैम्पर किया जाता है और उनको उसके बाद भी उनकी नीड्स को जो है वो फुलफिल किया जाता है, बॉन्डिंग की नीड्स को। बट अल्टीमेटली देयर वाज अ क्वेश्चन एंड वी एक एनालिसिस के बाद हम इस पॉइंट पर आए कि अगर उन बच्चों को हम विदाउट एनी एम्पैथी बिल्कुल एक जो है ऐसी स्टेट में डाल देंगे जहां उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही इन क्वाइट अर्ली फेजेस ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। एक बच्चा जो बिल्कुल अपने आप को हैंडल नहीं कर सकता और जब उसको पता है कि इस टाइम में इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद नोबडी इज गोइंग टू लुक आफ्टर मी, तो उस बच्चे के अंदर जो उसके ब्रेन के इमोशनल एम्पैथी के एरियाज हैं वो थोड़ा सा नम होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे बच्चों के ब्रेन के वो एरियाज जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं कि जहां एम्पैथी का रोल जरा कम होता है। फिर ऐसे बच्चे ही कल को अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ने में आसानी फील करते हैं। तो यहाँ पर यह है कि जो एक होप और ट्रस्ट का एलिमेंट है वो यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो बड़े उसके दूर तक उसके रिजल्ट जाते हैं, ठीक है। सो हमारे कल्चर में ऐसा यूजुअली कम है, होते हैं ऐसे केसेस, नो डाउट देयर आर सर्टेन केसेस, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस का सेंस डेवलप करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फेज, तो उस ट्रस्ट और होप के रिजल्ट में वो बच्चा अपने एनवायरनमेंट में इनिशिएटिव लेना सीखता है और उसके अंदर अपनी एबिलिटीज को, डिफरेंट रोल्स को प्रैक्टिस करने की एबिलिटी आती है एंड ही और शी फील्स कॉन्फिडेंट कि मैं इस चीज को ट्राई करूं। हमारे स्कूलिंग सिस्टम में जैसे है फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चे जो हैं दे आर सपोज टू सिट इन द क्लासरूम, और सबसे अच्छा क्लासरूम वो कंसिडर होता है कि जहां बच्चे अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे एंड दैट टीचर इज कंसिडर्ड द आइडियल टीचर जो कि डिसिप्लिन को मेंटेन करती है। लेकिन अगर हम देखें बायोलॉजिकली एंड इमोशनली भी बच्चों का मेटाबॉलिक रेट सबसे ज्यादा हाई होता है, ठीक है। जैसे एक बकरी के बच्चे बिल्कुल छलांगे मारते हैं, बच्चों का मेटाबॉलिक रेट बिकॉज देयर बॉडी इज ग्रोइंग, देयर लिम्स आर ग्रोइंग, तो उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, उनके अंदर हर वक्त एक फिजिकल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो उन बच्चों को जब हम बिठा देते हैं और वो बच्चे उठकर किसी भी चीज को अगर खुद से हाथ लगाते हैं या घर पे किसी स्विच को चेक किया या किसी और चीज को, तो वो यूजुअली से इट लाइक दिस कि इसको टच नहीं करना, इसको हाथ नहीं लगाना, यहाँ नहीं जाना। तो दीज काइंड ऑफ एटीट्यूड्स जो हैं ये थोड़ा सा बच्चों के अंदर एक इनिशिएटिव लेने को और अपनी आइडेंटिटी डेवलप करने के प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों को इनकरेज करें और उन्हें सब्स्टिट्यूट्स दें, ठीक है, यू कैन नॉट डू दिस बट दिस इज द अदर ऑप्शन, तो वो सब्स्टिट्यूट्स जो है वो बच्चों को डिफरेंट रोल्स की रिहर्सल करने में, डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं, जिससे उनका अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट डेवलप होता है। जब वो ट्रस्ट डेवलप होता है तो फिर अगर हम देखें प्री स्कूल के बाद जो हमारा प्राइमरी स्कूल टाइम आता है उसमें बच्चों के अंदर अकॉर्डिंग टू एरिक्सन एज वेल कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अगर बच्चे ने इनिशिएटिव लेना सीखा है, he will be the first one to answer the questions, he will be the first one to solve a problem, he will be the first one to help some other people in the environment. So further उसकी identity formation होती है, उसको अपना रोल क्लियर हो रहा है, वो अपनी एबिलिटीज में ट्रस्ट रखता है, तो उसके अंदर ये एबिलिटीज ग्रेजुअली स्टार्ट होती हैं। ये एकदम से आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप नहीं होता, ठीक है, आइडेंटिटी भी एकदम से डेवलप नहीं होती, ग्रेजुअल प्रोसेस है उसकी फॉर्मेशन का। सो अगर उस बच्चे के अंदर होप डेवलप नहीं हुई, ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ, उसने इनिशिएटिव लेना नहीं सीखा और उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं आई। आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल लेवल पर बच्चों को बड़ा वो इंटरेस्ट होता है कि बेस्ट टीचर का फेवरेट बच्चा कौन है, या टीचर से स्टार मिले हैं, या मार्क्स और कंपटीशन और पीयर ग्रुप में इसकी रिकग्निशन क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स कौन है। इस एज में बच्चों के लिए बड़ी एक वो इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी लाइफ में। सो अगर बच्चों के अंदर ये कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं हुई तो फिर टीन एज में आकर वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस या रोल कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, ठीक है। रोल कंफ्यूजन हमारी अगर हम देखें तो फैमिली, दिस इज ट्रिगर्ड बाय नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल, जिसमें बायोलॉजिकल चेंजेस भी होती हैं टीनेज में बच्चों की, एंड ना तो वो छोटों में शुमार होते हैं ना बड़ों में शुमार होते हैं, ठीक है। बड़ों के पास जाएं तो वो कहते हैं यहाँ मत बैठो, ठीक है, और जब बच्चों के साथ वो मिसफिट फील करते हैं तो उस मिसफिट फील करने में उनको अपनी आइडेंटिटी डेवलप करने में एक नॉर्मली एक चैलेंज उनके लिए क्रिएट होता है, ठीक है। दैट इज अ वल्नरेबल फेज, और हार्मोनल चेंजेस भी उनकी होती हैं, फिर उनको जेंडर
जेंडर रोल्स उस वक्त डिफाइन हो रहे होते हैं जिसमें हमारे कल्चर में सर्टन बाउंड्रीज, हम उसको लिमिटेशंस या उसको रिस्ट्रिक्शंस तो मैं नहीं कहूंगी, सर्टन बाउंड्री सेटिंग्स होती हैं कुछ, जो कि उस रोल को फर्दर डिफाइन करती हैं। हम उससे एट टाइम्स रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं कि गर्ल्स पे ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं या बॉयज के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं। वो एक्चुअली बाउंड्री सेटिंग्स होती हैं जो कि आपको अपने रोल को क्लियर करने में और अपने रोल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। अगर हम बाउंड्री सेट ना करें तो फिर भी प्रॉब्लम्स और जेंडर डिस्फोरिया की चीजें क्रिएट होती हैं।